ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਮਾਲ ਨੂੰ, ਜਨੂਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 2-2, 4-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-7-10 ਘਰ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 20-25 ਆਪਣੇ ذاتی ਘਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਹੋ ਜੀ, ਖੋਲ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਖੋਲ ਲਓ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਬਿਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਮਝੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ। ਆਬਦ ਭਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਬਹਿਸ ਡਿਬੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਬਸਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਐਬਸਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਸਹੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਈਜਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। गैर खनी, अस्सलाम वालेकुम सर, म्यूट खोलें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ आए जिन्होंने टाके बंब चलाए आ गए। अब जी मुझे तो पता नहीं किस पे बात हो रहा है, लेकिन मैं तो वैसा आ गया। कोई बात नहीं भाईजान, आप वैसे आ गए हैं, आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हो, ठीक है ना। आप आए हैं, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला।
तो आए बैठें बात करें, कोई मसला नहीं, ये थैंक आपकी यू, अपनी थैंक ब्रॉड यू है। सो मच भाई। मैं बस सुन रहा हूँ, आप बात करें इंशाल्लाह। जब जी सर, मौका आएगा थैंक, तो इंशाल्लाह मैं भी बात करूँगा। ओके सर जी, थैंक यू हो गया। जी ज़फ़र भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। तो मैं असल में वालेकुम सलाम, आमीन। मैं बेसिकली अपना अबू बकर भाई देख के भी आए हैं, जब आपके मैसेज आ रहे थे तो तब मैं वहाँ रोड पे ज़रा पोस्टिंग करता हूँ, वहाँ पे वो मैं ही लेके चलता हूँ। तो अभी दुआ कर के आया और आपको हाजिर लगवाने आया कि अहमद भाई बड़े जो है ना वो कमल मजाजी से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे मुलाकात भी करूँ, दर्शन भी करूँ, आपकी मोहब्बत मेरी बातें भी सुनूँ। तो सब बात का क्या हाल हवाल है। और माजरत कि मैं नीचे बैठ के अक्सर सुनता हूँ आप लोगों को, ऊपर इसलिए नहीं आता। माशाल्लाह सब बहुत ही मैच्योर और सीनियर लोग बैठे होते हैं, तो मैं महसूस नहीं करता कि मेरी ऊपर ज़रूरत हो, इसलिए मैं अक्सर रोज़ अपनी ड्यूटी के तौर पे नीचे आके बैठ के सुनता हूँ। लेकिन मैं ऊपर इसलिए नहीं आता या इन इसलिए नहीं होता कि मैं ऐसे ही फजूल जो एक कीमती जगह है उसको संभाल के बैठ जाऊँ। और आप लोगों का प्यार है और मोहब्बत है कि आप मुझे नीचे भी नहीं उतारते, तो इस वजह से जो है मैं ये भी गुस्ताखी करता सर हूँ कि जी नीचे बैठ के सुनूँ। बात पता क्या है ज़फ़र भाई, और मैं ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਸਕਾਟਰ ਜਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਹੀਮ ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਉਧਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਿਓ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ। आओगे, आके डिबेट करोगे, लोगों को पूछोगे, कोई टॉपिक छिड़ेगा, कोई अगे जाएगा, वो असी अपनियां ही मार मूर के चले चुले जाईदा। तां करके तुहानूं सददे आ कि जनाबे वाली तुसीं साडे जिहड़े जे ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਨ ਇੰਚਾਰਜ ਜੇ, ਮੇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ इतना प्यार और मुहब्बत देन दा और इतने प्यारे अल्फाज मेरे वास्ते कहन दा या फहीम भाई वास्ते। बेसिकली ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ी दोस्त अहबाब ਇੱਥੇ भी आ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ पहचान हो गई है। तो इस वास्ते मेरा ख्याल है ऊपर हमारे भाई को शायद समझ ना आए, तो इसलिए मैं उर्दू में बात करता हूँ। तो हमारे काफ़ी सीनियर लोग यहाँ पे माशाल्लाह अब आना शुरू हो गए, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं नीचे बैठूंगा। जब देखूंगा कि दूसरी ब्रोड्स पे अगर ज़रूरत है तो हम एक ही जगह पे बैठ जाएंगे सब लोग, तो बाकी ब्रोड्स पे वैसे ही गप्पें चल रही होती हैं। तो इस वजह से भी हम कोशिश कर रहे थे कि हम स्प्लिट हो जाएं, हम मुख्तलिफ ब्रोड्स पे जाएं और वहाँ पे जो एक हमारा मोटिव है, जैसे हम ये एक फार्म के ऊपर बात कर रहे हैं, फार्म पे काम हो रहा है, उसके मतलब आगाही कर दें लोगों को। अगर हम लोग मुख्तलिफ ब्रोड्स पे नहीं जाएंगे तो उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा, हम लोगों के पास उनके व्हाट्सअप नंबर नहीं है। तो ये कंपेन जो है इसको फैलाने के लिए भी मैं अपनी ब्रोड भी चला रहा हूँ, मलक साहब की, मलक इजाज़ साहब की ब्रोड पे भी बैठता हूँ, फिर गौर भाई के साथ भी बैठता हूँ। मतलब मुख्तलिफ ब्रोड्स पे टाइम देने का मकसद ये है कि सिर्फ कि हम ये जो अपना एक मोटिव है वो सब लोगों तक स्प्लिट कर सकें, उन तक पहुंचा सकें। तो जिसको पंजाबी में कहते हैं, जैसे आप मेरी तरह एक ठेठ पंजाबी हैं, तो हम लोग वो जब गंदम में मारते हैं ना वो खाद का छट्टा, तो वो छट्टा मारने जाते हैं हम लोग। तो इसलिए आप लोग बहुत ही मेच्योर लोग हैं, आप लोगों को मेरा ख्याल नहीं कि हम लोगों की ज़रूरत है या हम लोगों को यहाँ पे बैठ के क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत है। आप बेहतरीन डिबेटर हैं अज़मत भाई, आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं और आपके पास क्वेश्चन भी बहुत वैलिड होते हैं। बल्कि मैं बहुत सी चीज़ें आपसे सीखने की कोशिश करता हूँ हमेशा। आप हाज़र दिमागी से बहुत अच्छे अंदाज से सवालात के जवाब देते हैं, वो मेरे पास दूर दूर तक मौजूद नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से सीख के मैं लोगों के साथ ऐसे ही ऑन द स्पॉट जो है वो क्वेश्चन पे आंसर कर सकूँ।
तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत ही मशहूर हैं। हमारे आबद भाई तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। तो आज की ब्रोड मेरा ख्याल है थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं फ़हीम भाई से मेरी, क्योंकि ब्रोड के दरमियान ही बात हो रही थी। तो उनके पास आए हुए हैं मेहमान, तो वो अभी नहीं आ सकेंगे। आप लोगों के पास यहाँ पे एक मामला हुआ जिसकी वजह से हमारे BFT भाई शायद डर गए हैं कि लाइव आने से, उनको डरा दिया गया है कुछ अहबाब की तरफ से। तो मुझे भी उसका पता नहीं है, मैंने भी सुना है, पता नहीं क्या सीन हुआ है। हाँ, मैं एक सॉरी अजमत भाई एक बात आपसे और, कि आपकी कॉल आई थी तब भी मैं ना ब्रोड के ऊपर था। तो फिर वो ब्रोड चलते 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 पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई, फिर उधर से उठे तो दूसरी ब्रोड पे चले गए। फिर मेरे घर में शादी का एक माशाल्लाह जो है मेरा भतीजा है उसकी शादी हो रही है। तो आज उसकी मतलब है कि वो अपनी नई दुल्हन लेके आया, तो इसलिए भी मैं मसरूफ़ था सारा दिन। तो इस वजह से आपसे रब्ता नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि आपकी कॉल आई और मैं उस वक्त कॉल इसलिए नहीं पिक कर पा रहा था क्योंकि मैं उस वक्त बोल रहा था बेसिकली लोगों को। ज़रा आपको पता है कि महफ़िल नात का एक वो अदबो इतराम भी है और एक सिलसिला भी है कि आप शेर पढ़ते हो, फिर नात खान के जो मामलात होते हैं उनमें इतनी तारीफ़ करते हो कि वो आपको हर रोज़ टाइम दिया करे, ठीक है। वो अगर उनको इतनी रिस्पेक्ट ना दी जाए तो वो भी नहीं आते। तो वो ज़रा मैं बोल रहा था तो इसलिए मैं आपका फ़ोन नहीं पिक कर सका, उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। तो वापस कॉल करने की मजबूरी मैंने आपको बता दी कि आज मैं सारा दिन एक तो अपनी ब्रोड पे इसलिए भी बैठा, मैं दूसरे लोगों की ब्रोड पे नहीं बैठा क्योंकि जब आप किसी ब्रोड पे बैठ के आपको वो सारी ज़िम्मेदारी थमा देते हैं तो फिर आप उठ नहीं पाते। अपनी ब्रोड का ये सिलसिला है कि मेरे साथ एंड पे शाज भाई थे, आबद भाई थे, एक दो और भाई थे। तो मैंने माज़रत कर ली थी कि नमाज का टाइम भी हो गया और आराम से मैं उठ सकता था। तो बाकी मजबूरी आपने समझ ली होगी। तो माइक खोल के बता दें आपने मेरी जो अर्ज़ी है वो कबूल फरमाई है कि नहीं फरमाई। जी सर, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती, लम्बी ज़िंदगी दे और आपके माल जान इज़्ज़त रिज़्क़ में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तो पहली तो आपको मुबारक हो आपके भतीजे की शादी की, बहुत बहुत। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और सारी उम्र मियाँ बीवी का प्यार जो है वो बरकरार रहे और अल्लाह पाक उनको नेक और साले औलाद से नवाजे। तो दूसरी बात यह है कि फ़हीम सर की समझ आ गई है, ठीक है। बाकी जो आपने बताया वो भी समझ गए हैं, लेकिन आपकी वजह आप लोग जब आते हैं तो हमारे ना इधर एक और माहौल बन जाता है। तो इसीलिए आपको बुलाते हैं सर जी कि आया करें। और ये जो आप बड़े हैं हमारे, तो आप ये जो काम हुआ है ना BFT भाई का, तो उनसे डायरेक्टली बात करके, क्योंकि ज़फ़र भाई मैंने ये देखा है कि हम लोग ब्रॉडों के ऊपर बैठते हैं ना, हम लोग लेक्चर भी देते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि ये ऐसे करो, ये वैसे करो, हमें ये खूबियाँ हैं, हमें ये खामियाँ हैं, हमें ये चेंज करना चाहिए, हमें वो चेंज करना चाहिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा बात जो मैंने इधर ब्रॉड के ऊपर देखी है ना, वो ये है कि हमारे जो ब्रॉड के ऊपर बैठे होते हैं हमें खुद में ही जो है ना वो बर्दाश्त नहीं है। अना अभी जो पाकिस्तान का मसला चल रहा है वो अना परस्ती का ही चल रहा है, वो अपनी ताकत का चल रहा है, अपने गुरूर का चल रहा है और अपनी अकड़ का चल रहा है। तो जब हम लोगों को ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं यार आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हमें खुद में भी थोड़ी सी चेंजिंग लानी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इधर मैंने देखा है कि ब्रॉड के ऊपर कई बंदे जो हैं वो, अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई बात कर रहा हूँ, मुझसे जज्बात में कोई बात निकल जाती है जो अगले बंदे को हर्ट करती है, और उसको अगर हर्ट किया है तो मिसाल के तौर पे अगर 10 बंदे या 1000 बंदा सुन रहा है, मेरे मुंह से कोई अल्फाज निकल गया, ठीक है, और अगर वो 10,000 बंदों को फील हो गया कि जी मैंने ज़फ़र भाई के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी है, तो मिसाल के तौर पे ज़फ़र भाई ने फील किया जी मेरी इंसल्ट हो गई, ठीक है। तो जब ज़फ़र भाई ने ये फील किया कि मेरी इंसल्ट हो गई है, तो अगर मैं उन्हीं 1000 बंदे के सामने, सब के सामने माफ़ी मांग रहा हूँ कि जी मेरी माजरत कबूल करें, मुझसे जज्बात में या जाने अनजाने में ये अल्फाज निकल गए, मतलब ये है कि वो बात तो उधर ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन इधर मैंने देखा है कि हर बंदा जो है माजरत करने के बावजूद भी वो फिर बोलता है कि जैसे नवाज शरीफ की मिन्नतें कर रहे थे ना सारे पाकिस्तानी कि यार आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, आ गया तो अभी कहते चले जाओ चले जाओ। तो वो बंदा ये समझ लेता कि अभी सारे मेरे पैर पड़ें
तो फिर ही मेरा कोई ना मकाम और रुतबा बढ़ेगा। तो हम इधर ना मकाम के लिए बैठे हैं, ना रुतबे के लिए बैठे हैं, ना फेम के लिए बैठे हैं, ना पैसों के लिए बैठे हैं। हम किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है। पाकिस्तान में आप किसी को कॉल करें ना, उसको बोलेंगे यार ये मेरा मैसेज इधर से लेकर उधर जाके दे आ, वो बोलता है यार मेरा टाइम नहीं है। तो इधर ना आपके पास इतना टाइम है फ्री का कि आप रोडों के ऊपर बैठ के इतनी मगजमारी करें, ना मेरे पास है। हर बंदे के पास, हर बंदे बिजी है, ठीक है। जो बंदा भी इधर टाइम निकाल के आता है, जो बंदा भी इधर बैठता है, ठीक है, वो अपना वो सबसे ज़्यादा कीमती टाइम देता है, ठीक है। जब वो कीमती टाइम देता है तो इसका मतलब है कि हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर बैठ के हम अपनी नापरस्ती के ऊपर या अपनी मैं में आके हम बोले नहीं जी ये ऐसी बात होगी उस ब्रॉड के ऊपर, आज से मैं ब्रॉड पे नहीं जाऊंगा। जब हम ये काम करेंगे तो हम कैसे ये दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी बातों के ऊपर वो अमल करके तो वो चेंज करेगा? कुछ भी नहीं चेंज होना। इसीलिए मैं बोलता हूँ खुद एहतसाबी जो है वो सबसे पहले हमें अपने आप से भी शुरू करनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या चेंज आई है। हमें जब से खान साहब को निकाला है हम सब लगे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर तो इतनी भी चेंज नहीं आई है कि एक होस्ट जो है वो बोलता है जी सब डबल टैप करें, वो बोलता है जी सब शेयर करें, वो बोलता है जी ठीक है जी ये टॉपिक बंद करें दूसरा स्टार्ट करें। उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अगर कोई बात हो जाती है वो बंदा माजरत कर लेता है, वो बंदा उस टॉपिक को ख़त्म करने के ऊपर तैयार नहीं। तो ये मैंने बोलना था कि जी देखें हमारे सामने इधर ब्रॉड के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है कि जी थोड़ी सी बात के ऊपर भी बंदे नाराज़ होकर चले जाते हैं। तो ये हमें खुद को चेंज करना चाहिए कि नहीं यार ये छोटी बहुत बात हम अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमें इतनी छोटी छोटी बातें तो वैसे बंदा इग्नोर कर देता, दरगुजर कर देता कि चलो यार हमारे बंदे इंजेक्ट रहें, हमारे बंदे मुंतशिर ना हों, हमारा बंदा का जो पैनल बना हुआ है वो चलता रहे। ठीक है सर, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें प्लीज़। जी आपने बड़ा मुफस्सल बता दिया है, लेकिन एक होता है एलिगेशन, और वो इतना बड़ा एलिगेशन एक मजहबी एलिगेशन होता है, उसको अना का मसला नहीं, वो पूरी शख्सियत पे एक हमला होता है। अगर एक इंसान नहीं जानता, उसको एक बंदे के मुतल्लिक मालूमात नहीं है कि वो कौन से रिलीजन से तल्लुक़ रखता है, कौन से फ़िरके से तल्लुक़ रखता है, और वो आते ही वो एलिगेशन लगा दे जो मतलब है कि मुर्तद का है, तो उस बंदे को हिट तो करेगा। फिर उस बंदे की सुनवाई की बजाय जो यहाँ पे ब्रॉड को हैंडल करने वाले हैं वो कहें नहीं नहीं वो बड़ा पुराना बंदा है, तो उस चलो जी गलती होगी, भरा है अपना भरा है उन जी, चलो जी ठीक है जी, कोई नहीं गल, कोई नहीं गल। उसको बाकायदा बैठा के आप लोगों ने इनवाइट किया उस बंदे को, उस बंदे के साथ आप बात करें कि आपने बगैर जाने बगैर पहचाने आपने हमारे भाई पे एलिगेशन लगा दिया, वो हमारे साथ काम करने वाला बंदा है। तो फिर यहाँ पे सिर्फ नहीं हुआ, तो दोबारा उस बंदे ने एक एलिगेशन, जब वो बंदा किसी भी ब्रॉड पे गया तो उस बंदे ने टारगेट किया, पीछे गया बंदा, ठीक है, और वहाँ पे जाके कह रहा है कि यार तू वो जी वेबसाइट पे दसना तू एवं लोगों ने गलत फहमी पा रहे हैं, ठीक है जी। तो वो बंदे क्या सोचेंगे यार ये बंदा क्या काम कर रहा है, वो तो आप लोगों की ही तबलीग लेके दूसरी ब्रॉडों पे गया है, और उसको बंदे दूसरी जगह पे इज्जत से एहतराम से बैठा रहे हैं, और वो बंदा जाता है पीछे से उस बंदे की जो है वो बात को जो है वो काटता है, और वो काट के उसको डिग्रेड करने की कोशिश करता है। तो फिर ऐसे बंदे पे पाबंदी होनी चाहिए, या उस बंदे के साथ उसको बुलवाया जाए और उसके साथ बात की जाए कि आप लोगों ने ये क्यों इस तरह किया है, आपके पास क्या सबूत हैं वेबसाइट के मुतल्लिक या उस बंदे की ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक, ठीक है। वो बंदे को जब हर दूसरी जगह पे हिट किया जाएगा तो वो भी एक इंसान है, वो उसका इस्ते नफ्स है, तो खुद इत्तसाबी होती है, खुद इत्तसाबी होती है कि यार किसी से अनफॉर्चुनेटली बात हो गई है, तो उस पे होती है कि यार चले उससे बात मुंह से फिसल गई है। वो एक बंदा पूरा प्लान करके आता है, ठीक है, वो नीचे से आता ही ये बात करने में, फिर वो दूसरी जगह पे पहुंचता है, वो कहता है तुम्हारी जो वेबसाइट तुम फंडिंग की कह रहे हो ये तुम फेक बात फैला रहे हो, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि जो पार्टी है वो क्या कर रही है, वो आप के अंदर ही वो एक पूरी पीटीआई है, वो आप के अंदर ही एक पूरा रिलीजन है, ठीक है। तो आप लोगों का भी हक बनता है कि आप जहाँ जहाँ पे बैठते हैं उस बंदे को या तो समझाएं या उस बंदे को उठाए नहीं, ठीक है। उठाया किसने था, जिसने बैठाया था उस बंदे को जाके उसके पीछे टारगेट करना चाहिए, उसके बंदे का जानने वाला है,
उसको जाके टारगेट करना चाहिए कि भाई वो हमारा भाई है, हम उसको इतने अरसे से जानते हैं, उसकी प्रोफाइल जाके चेक करो। ठीक, तुमने उस बंदे को टारगेट कर दिया। अब हर ब्रोड पे हर दूसरा बंदा कहेगा इसको वहाँ पे इमरान नाम के बंदे ने मरज़ई कहा है तो ये शायद मरज़ई है, उसकी बात पे कोई बंदा यकीन नहीं करेगा। उसकी अथेंटिसिटी जो है वो ख़त्म कर दिया आप लोगों ने यहाँ पे बैठा के। ये बात सही है, ये मैं टोटली एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हुई, क्योंकि वो जो भाई हैं उनका जो है वो हमें पता है, वो फ़हीम सर के साथ मिलके, गुज्जर सर के साथ मिलके सारा कुछ ये लोग कर रहे हैं, और हमें पता है कि वो हमसे बेहतर काम कर रहे हैं और वो सही काम कर रहे हैं। और जो कुछ भी हुआ, मुझे तो, मैंने तो ओवरऑल बात की थी, लेकिन मुझे इसका रियल पता नहीं है कि क्या बात हुई है, ठीक है ना। अगर मैं उस दिन बैठा होता तो मैं डेफिनेटली उसको सपोर्ट करता, क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा क्या काम कर रहा है। हालांकि वो बंदे को कोई भी मफाद नहीं है, वो पाकिस्तान का या पीटीआई का कोई काम करे या ना करे, वो ना उसने जाना है पाकिस्तान में, वो सारा कुछ अपना लेके जिधर बैठा हुआ है उधर ही बैठा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके दिल में हुब्बुल वतनी है, वो अपने मुल्क के लिए दर्द रखता है, एहसास रखता है, वो फिर भी अपना टाइम दे रहा है, पार्टी को भी दे रहा है, मुल्क के लिए दे रहा है। और उसके ऊपर अगर कोई बंदा एलिगेशन लगाए जी ये मरज़ई है या ये वो है या जो वेबसाइट है, उस बंदे से ये बोलना चाहिए था कि भाईजान हमने आपसे जस्टिफिकेशन नहीं मांगी है, आप ऐसा करेंगे, आपने अगर कुछ करना है तो करें, नहीं करना है तो इधर आके दूसरों को मतनफ़र नहीं करें। तो ये चीज़ जो है ये होस्ट की बनती थी, या जो जिन्होंने उठाया या जिन्होंने बुलाया ये उनकी बनती थी। तभी मुझे बिल्कुल भी सारी बात का पता नहीं है, लेकिन जैसे आपने बोला है उसको सुनने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये उनके साथ ज़्यादती है। तो इसीलिए आपको इनवाइट किया है, और आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बीच में पड़ें, और वो हमारा पक्का और मुखलिस बंदा है, उसको वापस लेके आएँ और उसको बोलें कि ठीक है। मैं भी, मेरे पास तो अभी उनका नंबर नहीं है, नहीं तो मैं जैसे आपको डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ या मैसेज कर देता हूँ, मैं उनसे भी बात कर लेता। लेकिन आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे सीनियर भी हैं, आप हो गए, फ़हीम सर हो गए, तो आप ये जो क्लैश है इसको ख़त्म करने में हमारी मदद करें प्लीज़। अच्छा, इस तरह के आप अजमल भाई को मेरे ख्याल में सारी बात करनी पता, क्योंकि एक आदमी को, सिर्फ एक आदमी को पता है, जो वो मेरे ख्याल में जफर इकबाल हैं, उन्हें सब ही नहीं पता। बाकी चलें, जो भी है ना, अपना आबद भाई, जी जफ़र भाई हो गए, देखिए जंगवी सार हो गए, देखिए ये सारे मेरे हमारे आज पुराने बंदे हैं, ठीक है। देखिए इनकी मेरा बात अभी को भी गला हमने बैठा हुआ ऑन है, करना है। मेरा जी अभी सर। मेरा अभी भी गला बैठा हुआ है। अभी वो उनको मैंने शेयर किया है, शायद वो नीचे आ जाए। वो नीचे शायद हो सकता है कि आउटसाइड बैठ के सुन रहे हों। वो हमेशा ब्रोड के नीचे आते हैं, आपको पता है। वो बहुत ही सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं, बहुत इज्जत करने वाले हैं, और जब उनको ये एलिगेशन लगा तो वो डर गए हैं। वो है इस किस्म के लोग कि मैं सिंपली कहूँ कि वो हम जैसे धक्कड़ नहीं है कि हम लड़ पड़ें। वो बंदे हाँ, सही बात है। माशाल्लाह बीएफटी भाई ऐसे हैं कि वो इतजाज करने की बजाय वो जगह ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही ये ऐसे ही। एक अच्छे मुखलिस दोस्त की भी निशानी है कि वहाँ पे मेरी वजह से कोई क्लैश ना पड़े। फिर उस बंदे को जब मुख्तलिफ जगह पे टारगेट किया गया है, तो फिर टारगेट करने की वजह से वे बंदा सोचता है कि मैं एक रज़ाई इलाही के तौर पे मैं अपनी जेब से फ़ंड भी दे रहा हूँ इस जमात को, मुझे इससे लेना देना नहीं है, सबसे ज़्यादा फ़ंड भी दे रहा हूँ, मैं इनके लिए फ़ंड इकट्ठा भी कर रहा हूँ, मैं इनके लिए मुख्तलिफ ब्रोडों पे बैठता हूँ। मैं अपना टाइम छोड़ के, उस बंदे को ये अपनी एक शौक़ है, वो सारे शौक़ छोड़ के वो बंदा हमारे लिए टाइम दे रहा है। एक बंदा सारा दिन अपनी ड्यूटी करता है, रात को नलाइयाँ दलाइयाँ करता है, और रात को वो बैठ के हमें लेक्चर देने आ जाए कि भाई जी वो ये मरज़ई है, इसको मैं मरज़इयों के साथ देख रहा हूँ। भाई पहले आप देख लो, कंफर्म कर लो, फिर आप हमें ये बता दें कि आप आलिम दीन हैं कि आप हमारे पे आके फतवा लगा सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो बंदा उस बंदे को कन्फ्रंट कर रहा है, जो उस बंदे को ऊपर लेके आ रहा है, उस बंदे से पूछने की बात है कि उस बंदे ने उस बंदे को बैठा के एक्सक्यूज़ क्यों नहीं करवाया। वो बंदा उल्टा कह रहा है, छड्डो छड्डो साड़ा भरा है, खैर ये मेरे साथ मामला हो चुका है, ठीक है। आबद साहब की ब्रोड से पहले जब मैंने कुछ इख्तलाफात रखे एक बंदे के साथ, तो मुझे नीचे आके लोगों ने गालियां देनियां शुरू कर दी थी। आबद भाई आप इस चीज़ के गवाह होंगे। गुज्जर साहब की ब्रोड पे हम म्यूट करते थे, उसी आईडी से वो खुल के बंदा बाहर आता था। उसको ये नहीं पता कि ये भी बंदे अकल रखते हैं कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, ठीक है यार। आपको अगर किसी से कौन था इख्तलाफ है, जिसके साथ उनकी हुई ये बात, क्या नाम था उसका? वो जर्मन से इमरान इस तरह साहब। वो इस तरह करे ना, वो जफर भाई, आप या तो अजमल भाई से बोल,
बार बात कर लेंगे, क्या ख्याल है? चलें बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो हुआ ना अपना ज़फ़र भाई, तो उसकी तरफ से मैं माज़रत करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे BFT भाई जो हैं ये हमें ज़्यादा अजीज़ हैं बनिस्बत दूसरों के, क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरी हमदर्दी है, मेरी सपोर्ट है, मेरा वोट है, वो BFT भाई की तरफ है। तो आप इसको ना मैं थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करें प्लीज़। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे बैठ के सुनना इसलिए शुरू कर दिया था कि हमने महसूस किया कि कुछ अहबाब को शौक़ है कि इस शौक़ में कि भाई ठीक है हम यहाँ पे गप्पे शप्पे मारें, और मैं खुल के कहूँगा कि आप लोगों को भी पता होगा मैं किसका जिक्र करूँ, वो नीचे सुन भी रहे होंगे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। हम लोग काम करते हैं फीस बिलिल्लाह, अपना 24-24 घंटे टाइम देते हैं। मेरी बेटी अभी भी पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, वो बेचारी 10 दफ़ा मेरे पास आई है। मैं मुख्तलिफ ब्रोडों पे बैठा था, उसको मैंने कहा बेटा जब तक खान साहब बाहर नहीं आते मेरा बेटा मेरे से टाइम मत मांगो, ठीक है। मैं अपनी फैमिली का टाइम काट के यहाँ पे दे रहा हूँ, अपने कारोबार का टाइम काट के यहाँ पे दे रहा हूँ, और फिर भी हमें आके कोई लेक्चर दे और फिर ये कहे कि हम सारा दिन कंपेन को लेके चले, लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ, ठीक है। मैं कभी लाइव आया ही नहीं हूँ, ठीक है। मैंने आज तकरीबन 2-3 दिन हो गए मैं उस टाइम पे लाइव आना शुरू हो गया हूँ जिस टाइम पे कोई ब्रॉड नहीं होती, सिर्फ ये टाइम देने के लिए। मुझे वहाँ से कोई जैसे आबद भाई को यहाँ पे कुछ गिफ्टिंग नहीं होती या इनको कोई फ़ायदा नहीं है, इसी तरह मुझे भी कोई नहीं है। हम रज़ाई लाई के लिए टाइम देते हैं, वो BFT भाई रज़ाई लाई के लिए टाइम देते हैं। तो जो लोग थोड़ी सी ये रखते हैं ना अनापरस्ती, उनको चाहिए कि टीम के लिए काम करें, मुखलस होकर काम करें, अपनी अना के पीछे काम ना करें। हमें उनकी अना का लेना देना भी कुछ नहीं है, उनके साथ हमारा कोई बनना भी साझा नहीं है कि हमने उनके साथ बांटना है। हम टीम के लिए काम कर रहे हैं। हमने इसीलिए कोशिश की कि मैं अभी तकरीबन मैंने आपको गले की इसीलिए बताया, उस वक्त म्यूट पे ही बोल रहा था, मेरा गला अभी बैठा हुआ है। मैंने BFT भाई से तकरीबन 2 घंटे बात की है, ठीक है जी। ब्रॉड पे जाने से पहले 2 घंटे बात किया, बल्कि मुझे बड़े ज़रूरी फ़ोन आ रहे थे घर से, मैंने नहीं उठाए इसीलिए कि उनको मैं ये बता सकूं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत मुखलिस हैं और आप टीम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बेचारे ऐसे डरे हैं क्योंकि वो इन मामलात को जानते नहीं हैं। हम पंजाबी लोग हैं ना, हम लड़ाके पड़ाके सारा कुछ करते हैं, लड़ाई बड़ाई तो वो भी जानते हैं सारे, जो पश्तून भी हैं, बलोच पश्तून सारे जानते हैं, लेकिन वो कुछ और अंदाज के इंसान हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो नीचे सुन रहे हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमेशा आगे ब्रॉड मेरी तरह नीचे सुनते हैं, तो उनको उस रिक्वेस्ट दिन एक करूँगा दिन वो। पता क्या हुआ ज़फ़र भाई, इधर ब्रॉड के ऊपर एक बंदा आया और उसने कोई बात की। तो ये BFT भाई ना कहीं ड्राइविंग कर रहे थे, जा रहे थे रास्ते में, हालांकि वो सुन रहे थे, हमें नहीं पता है कि वो हमें सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो बंदा जा रहा था हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। जैसे वो जा रहा था तो BFT भाई ने ऑनलाइन हुए और उसी टाइम ऊपर आए। जैसे ऊपर आए तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा था, मैं स्पेशल गाड़ी रोक के आपके जवाब देने के लिए मैं रुका हूँ, और जैसे मैं आपका जवाब कंप्लीट कर लूँगा मैं चला जाऊँगा। और जब भी वो आते हैं, जिस बंदे को भी हो, उनको नहीं पता है कौन PTI का है कौन दूसरी पार्टी का, वो सबको रिस्पेक्ट देते हैं और जो पढ़े लिखे और सुलझे तरीके से बोलते हैं और सबको इज़्ज़त देते हैं। इसलिए उनको ही जब वो आते हैं तो मैं ये आबद भाई भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि वो इसको आगे लेके चलें, क्योंकि आबद भाई की तो मेहरबानी की ये चला के बैठे हुए हैं, आगे जो हैंडल करना है वो ये आबद भाई भी बोल देते हैं जी BFT भाई आप लेके चलें। तो इसलिए जो बंदे पता होता है ना, जिनको समझ होती है कि ये बंदे हमारे काम के हैं या हमारे फ़ायदे के हैं या हमारे लिए अच्छे हैं, उन बंदों को हमें नहीं खोना चाहिए, ठीक है। उन बंदों से हमें अपना कुछ रिश्ता नाता नहीं तोड़ना चाहिए बनिस्बत के वो बंदों के जो एक दिन के लिए आते हैं या टाइम पास के लिए आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें खुद इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए ना कि जो बंदे आते हैं अपना टाइम देते हैं, हमारे पार्टी के लिए कर रहे हैं, कुछ लीडर के लिए कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं, हमें नज़र आना चाहिए। और हमें मुझे तो नज़र आ रहा है, ठीक है, कि कौन किधर खड़ा है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो मेन बंदे हैं या जो मेन सपोर्टर हैं या जो मेन इस ब्रॉड के और इस मुल्क के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको हम किसी कीमत के लिए ऊपर भी नहीं खोएं। वो हमारा एक कहते हैं ना कि असासा हैं, तो ये भी हमारा असासा हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें मुत्तहद होने की ज़रूरत है, ना कि एक बंदे की वजह से हम अपना वो बंदा खो दें जो कि बेचारा सबके दिलों के में रहता है। जी सर। नीचे दफा भाई आया और इन्हें कहे कि ये भी ऊपर आया करे।
से इस्लाम दुआ करेंगे तो नीचे बैठ नहीं, जाएगा। ये आबद भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे बंदों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सीन हो रहा है ना, मैं ये नोट किया है मैंने 5 से 7 दिन के अंदर, एक वीक का पूरा मैंने नोट किया है कि जो इधर हो रहा है ना, इसीलिए मैंने आज बोला है। और जो इधर हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ठीक है, जो पुराने बंदे हैं मुझे भी नीचे उतारना है, मुझे भी म्यूट पे लगाना है, मैं सारी रात म्यूट के ऊपर लगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो नए बंदे आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, उनको टाइम दें, उनको मौका दें, उनको बोलने दें। हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम बैठे रहेंगे चुप करके। हाँ, कोई किसी से हैंडल नहीं होता है तो फिर कोई बीच में इंटरप्ट कर सकता है, लेकिन दूसरों को मौका दें। अल्फ़ा भाई भी आए हैं, तो ज़्यादातर हमारे जो सीनियर लोग हैं, जैसे अल्फ़ा भाई हो गए, अपना ज़फ़र भाई हो गए, फ़हीम सर हो गए, इनमें जो कुछ है जो देख रहे हैं ना सिचुएशन, उसके मुताबिक ये लोग बैक फुट पे गए हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। अभी ये माने या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन अल्फा भाई भी मैंने जो ये है ना फील किया नाराज है। हो गए थे। अल्फा भाई भी एक जगह नाराज हो गए थे, तो मैं तो अभी उनके सामने भी बात कर रहा हूँ कि मैंने तो बड़ी मुश्किल से भी ऊपर लाया था, उसके बाद ये ऊपर नहीं आए। जफर भाई आप बोले जरा अल्फा भाई को। नहीं, अल्फ़ा भाई बहुत काम करने वाले और प्रैक्टिकली ग्राउंड पे काम करने वाले हैं। वो नाराज़ नहीं होते। वो हुब्बुल वतनी और ख़ान साहब के पक्के सिपाही हैं। वो कभी भी, मैंने उनको बड़ी बड़ी परोडों पे, हम दोनों भी हुए हैं जहाँ पे इनके साथ बहुत ज़्यादा तकरार हुआ है, तो वो दोबारा भी जाते हैं। अल्फ़ा भाई का जो थोड़ा सा एक मामला है, अज़मत भाई अगर आप म्यूट करेंगे, आपकी तरफ से शोर काफ़ी आ रहा है। आप मेरा ख्याल है रोड के ऊपर है ना, तो शायद मेरी मेरी भी आवाज़ पलट के आ रही है। बहुत शुक्रिया। तो अल्फ़ा भाई जो है ना, वो इस वक्त थोड़ा सा तो एक जॉब के साथ साथ बच्चों को भी टाइम देते हैं, जिस वजह से वो अक्सर नीचे कमेंट में लिख देते हैं अपने सवालात। और वो अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो हमेशा ज़ाहिर करते हैं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन मैं अभी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्फ़ा भाई ऊपर आएँ और आवाम को जो हमारी जो ख़बरें मेन छुप चुकी हैं, जो ओआईसी ने इजलास किया है सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे कोई सख्त इकदामात लेने से गुरेज किया गया है, उस पर थोड़ी सी हमें रोशनी डाल दें कि ये मुस्लिम ममालिक हमें जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, अगर इस पे हमें थोड़ी सी बात कर दें। और हमारी अंदर जो मुनाफिकीन छुपे हुए हैं मुस्लिम ममालिक के, उनको ज़रा ज़ाहिर कर दें तो उनकी नवाजिश होगी। अल्फ़ा भाई अगर यहाँ पे आएँ तो प्लीज़ काइंडली आप थोड़ी देर के लिए ऊपर आएँ। अल्फ़ा भाई तो निकल के चुके हैं, मेरा ख्याल है वो सलाम करके निकल चुके हैं। हाँ वो सलाम कर आ, चले। जी जी। जी चले। बहरहाल जी, अज़मत भाई हमारे साथ है माशाल्लाह, जांबाज हैं। और फ़लस्तीन के लिए अरब कंट्री में भी बैठ के बहुत आवाज़ उठाते हैं, और पूरे दिलो जान से कोशिश करते हैं कि हमारे जो क्या कहें कि उनको हम ना मस्कीन कह सकते हैं, ना उनको हम मज़लूम कह सकते हैं, क्योंकि मज़लूम तो वो तब हो जब मुस्लिम उम्मा बहुत कम तादाद में हो। लेकिन हम यही कहेंगे, हमारी मुर्दा मुस्लिम कौम के दरमियान एक छोटी सी ताज़ा दम फ़ौज फ़लस्तीन की जो लड़ रही है, उस पे ओआईसी ने अल्लाह अल्लाह करके जब ये इजलास किया है, तो इजलास के अंदर उन्होंने जो इस्लामी तावन तंजीम की तारीख़ी इजलास में इसराइल के ख़िलाफ़ किसी अमली इकदाम पर इतफ़ाक़ क्यों नहीं किया, इसमें मैं पूछना चाहूँगा। अज़मत भाई से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मूसा भाई अभी ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह अच्छा मैं औरंगज़ेब भाई एक से। मिनट सर, अगर बुरा ना मैं तो मैं ये औरंगजेब साहब आए हैं, ये हमारे पास 2 दफा मेरे ख्याल पहले में आ चुके हैं, ये जी नए हैं। बिस्मिल्लाह। इनसे जरा सलाम दुआ कर लेते हैं, फिर वासिफ भी आ गया तो वासिफ से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब भाई। वालेकुम सलाम, सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी नाम औरंगजेब है, एक और औरंगजेब भी हैं। वो जंगल खेल जो क्वाड का है, मैं सवाबी का है। अच्छा अच्छा, स्वाबी क्या हूँ, चलिए ठीक है जी, हम आपको हाँ हाँ औरंगजेब स्वाबी कहेंगे। हाँ सर हाँ। कहाँ से हैं? सवाबी से ये अभी भी उस वक्त, नहीं नहीं अभी नहीं तो नहीं, मैं मैं इस रियाज वक्त सऊदीया से हूँ। सऊदीया से। अच्छा ठीक। अच्छा सर, आपने ये सवाल सुना है? आप सऊदीया से नहीं हैं तो सुना बोल है, सकते। ओआईसी में नहीं जो सुना है। ये अभी बता जी देते हैं। औरंगज़ेब भाई, सवाल था कि इस्लामी तावन तंजीम, जिसे हम ओआईसी, 57 ममालिक इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है हमारी, उनका इजलास आप जहाँ पे मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर, वहाँ पे रियाज के अंदर मुनक्कद किया गया। अल्लाह अल्लाह करके जब मुनक्कद किया गया, तो सारे मुस्लिम ममालिक ने सवाए ईरान और सूरिया के
उन्होंने कुछ बोले थे कि सख्त इक़दामात के लिए, तो कोई सख्त इक़दामात पर जो है वो इत्तेफाक राय नहीं हो सका। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जब 57 ममालिक ही इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे तो वो तो हमारे ये मज़लूम बहन भाइयों को मार देंगे, क्या कहेंगे? भाई साहब हम तो हमारा अपना हालात ऐसा ही है ना कि हम खुद अपना मुल्क के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं कि हम क्यों नहीं खड़े होंगे, तो दूसरों के बारे में हम क्या कहेंगे। हम खुद दूसरे के इशारे पे घूम रहे हैं, तो दूसरों से हम खुद दूसरे के इशारे पे चल रहे हैं, तो हम दूसरे से क्या गिला करेंगे। बस उसी का तो मेरे ख्याल में अल्लाह ही हाफिज़ है, वो अल्लाह ही उसका मदद करेगा, और कुछ नहीं है भाई। और ये इसके बारे में मेरे को पूरा मालूम भी नहीं है कि पॉलिसी का इजलास कब हुआ है, इधर सऊदीया में हुआ है। जी, रियाज़ के अंदर सऊदीया के अंदर ये इजलास हुआ है, जिसमें ईरान ने पेशकश की थी कि इज़राइल की फ़ौज को दहशतगर्द करार दिया जाए, और शाम की सूरिया का जो अपना सदर है बशार अल असद, उसने अपने सफारती तल्लुकात सब ममालिकों का तक ख़त्म किए जाएं, जिस पे कोई कान नहीं धरा गया। और हमारा जो अल्फ़ा भाई आ चुके हैं। औरंगज़ेब भाई, अल्फ़ा भाई से पहले मैं पूछता हूँ, मेरा सवाल आपने अल्फ़ा भाई सुन लिया कि नहीं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जफर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक सब दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए जफर भाई, ये आपसे या उन लोगों से कोई ढकी छुपी बात नहीं है जिनके साथ हम एक लंबे अरसे से मुख्तलिफ नशिस्तों पे मुख्तलिफ महफिलों में बैठ के बातचीत करते हैं। और शायद याद होगा आपको, मैं कई मौकों पे एक बात कहता हूँ कि जो भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे हुए हैं, असल में जो दोस्त ममालिक के रूप में असल पाकिस्तान के जो दुश्मन है ना, वो किसी को भी नहीं पता। अक्सर हम लोग जो बात करते हैं ना, हाँ जी, इसराइल, इंडिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, लेकिन जो असल कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर मेरी प्रॉब्लम है। मैंने कई बार खुल के भी बात की और कई बार मैंने ये कहा कि मुझे खतरा है कहीं मेरा हज और उम्रा बैन ना कर दिया जाए। तो मैं इस वजह से बड़ी मजबूरी की हालत में मैं क्या करूं। मतलब अगर ये कोई और मुल्क होता ना, जो मतलब उन मुल्कों की सफ में अगर कोई और मुल्क होता ना, तो मैं तिगनी दा नाच नचा देता, मैं नंगा करके टांग देता चौक में उल्टा। लेकिन प्रॉब्लम मतलब मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ, मैं साम्राज्य मुल्क में रह रहा हूँ, ठीक है जी। और मैं साम्राज्य मुल्क में रहते हुए भी साम्राज्य को उस तरह उल्टा टांगता हूँ कि जिस तरह बटकड़ाई वाले को चिकन टंगे होंगे ने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस मुल्क को या उन कुछ ममालिक का एक ब्लॉक है जिनके मुतल्लिक खुल के बोलने में मुझे सिर्फ एक नुकसान का खतरा है, और वो ये कि मुझे अगर बैन किया जाता तो मैं हज उम्रा करन किथे जावांगा, ठीक है जी। तो ये कई मौकों पे मैं आपको कह चुका हूं कि, और एक और मेरा डायलॉग आपको याद होगा, जो मेरी एक लाइन है जो अक्सर याद थी। बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि आप दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करते हैं, और आप बाज़ औक़ात एक लफ्ज़, एक फ़िक्रा या एक पैराग्राफ में आप वो सब कुछ कह देते हैं जो कई किताबें नहीं कह सकती। तो मैंने कई मौकों पे वो एक जुमला बोला है, और वो जुमला ये था कि इमरान खान का कद बहुत सारे बादशाहों से बहुत बुलंद हो चुका था, जो उनको सूट नहीं करता था, जो उनको रास नहीं आया। अभी 2-3 दिन पहले भी इसी ब्रॉड के ऊपर हमने इस मौजू पे भी बातचीत की थी। तो देखिए जी, गुजारिश ये है कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ। मैं इसलिए सरप्राइज नहीं हूँ, देखें बहुत सारी चीजें हमने रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले देख ली थी। हमने उस पे अवाम को मतलब देखें, वो उस पहली लिस्ट में जहां अरशद शरीफ शहीद को कत्ल किया गया, जब शहीद किया गया, उस लिस्ट में मेरा नाम इसी वजह से था कि हमने रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले ही बहुत सारी चीजें ऐसी खोल के बता दी थी। और बहरा हिंद के इर्द गिर्द अमरीकी जो जंगी मशकी बेड़े थे, वो बगैर किसी स्केजुअल्ड, बगैर किसी अनाउंस्ड, बगैर किसी पब्लिक शुदा स्केजुअल या जो एक होता ना प्लान, जब भी किसी दो ममालिक के दरमियान को मशकी जंगी मशकें होती हैं ना, तो वो बाकायदा तौर पे उनका ऐलान किया जाता है, ठीक है जी। मीडिया के लिए प्रेस रिलीजेस दी जाती हैं और बहुत कुछ। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के इर्द गिर्द जब ये हुआ, तो उस वक्त अमरीकी जंगी बेड़े जो थे, वो बहरा हिंद जो हमारी सरहदों के इर्द गिर्द बड़ी
बड़ी शिद्दत से दंदनाते फिरते दिखाई दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके जो असली दोस्त ममालिक हैं वो मदद करने को ना आ जाएं। मैं उन दोस्त ममालिक की बात नहीं कर रहा जो जाली हैं। अभी आप ओआईसी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये वही ओआईसी है जिसके दांत निकालने के लिए, जिसका डंग निकालने के लिए असल में इमरान खान को हटाया गया। इमरान खान के ऊपर जब चार्जशीट लगती है तो उस चार्जशीट में जो बड़े बड़े जो उसके जुराइम या गुनाह हैं जो उनकी नजर से हैं और जो एक असल मुसलमान और मोमिन की नजर से है, वो उसकी जन्नत के स्टाफ है, जन्नत जाने की उसके वजूहात हैं। उनमें से एक ये भी था कि इसने मुस्लिम उम्मा के ब्लॉक को बहुत जल्दी, बहुत मौसर और बहुत ज्यादा तेजी से उसको मजबूत कर दिया था। और अगर ऐसा हो जाता है तो देखें, गौर करें, मतलब आप आज से कोई 40 से 50 साल की तारीख को दोहरा के देख लें, छान के देख लें, बहुत सारे लोगों को इस चीज का पता भी होगा। तो आपको इतना मुअस्सर सिर्फ दो ऐसे मुसलमान, शाह फैसल और उसके पीछे आप मिस्र में आपको एक आधा, मतलब कहने को दो है लेकिन असल में एक है, और उसके बाद लिस्ट बड़ी मिलेगी आपको, सदाम का नाम भी उसमें मिलेगा आपको, उसमें मुर्शी का नाम भी मिलेगा, बेशुमार लोगों का नाम, लेकिन जो असल, और कुछ लोग तो भुट्टो को भी उसमें गिनते हैं। लेकिन अगर असल असल आप जो मुस्लिम उम्मा के असासे की बात करेंगे ना, तो वो मेरी नाकस राय के मुताबिक 3 ही थे, जिनमें सबसे जो मौजूदा या सबसे आखिरी लिस्ट में है वो इमरान खान ही है अब तक, जिसने बहुत प्रॉब्लम ये होगी कि इमरान खान की जो गूंज थी ना, वो मुस्लिम दुनिया के साथ साथ गैर मुस्लिम दुनिया में भी बड़ी शिद्दत से जो थी ना, वो बुलंद होती थी। और प्रॉब्लम ये था क्योंकि वो एक इसका पर्सोना, उसका जो एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी आज भी उसके, आपको पता है, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है सर। ये जब वो बोलता था तो उसके बोलने के पीछे बहुत सारे गैर मुल्की, जो गैर मुसलमान ममालिक हैं, उसके अंदर भी किताबें लिखने के मवाद जो थे ना, वो वजह बन जाती थी, उनको मटेरियल मिल जाता था। तो ऐसा बंदा जब मुस्लिम दुनिया का उभरता हुआ लीडर बना, जिसको मगरिब की जुबान भी आती थी, जिसको मगरिब का कल्चर भी पता था, जिसको मगरिब के माइंडसेट का भी पता था, जिनको मगरिब की काली करतूतों का भी पता था, जिनको मगरिब की हर उस जेर जबर पेश का पता था, जो आज से पहले आने वाले जितने भी यानी नामवर मुसलमान कायदीन थे, शाह फैसल समेत, उनको वो चीजें नहीं थी पता। जो इस बंदे के पास एक कंप्लीट मुकम्मल पैकेज था, एक ऐसा पैकेज था जो डिफीटेबल था, जिसके ऊपर इनको स्ट्राइक डाउन करना बड़ा मसला हुआ था। क्योंकि वो जो बात करता था, उस बात को उन्हीं की जुबान में, उन्हीं के मुंह पे जब वो मारता था, तो वो बात देखें, इनके पास उसका डिफेंस करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए कोई लॉजिक नहीं मिलती थी, अनटिल अनलेस कि वो उस बंदे की उसका जो टैलेंट है, जो उसको अल्लाह की तरफ से मदद मिल रही है, वो उससे ऊपर जाए। लिहाजा वो वहां कामयाब जब नहीं हुए तो फिर उसको स्ट्राइक डाउन इस सेंस में किया गया, उसके खिलाफ साजिश की। तो प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, ओआईसी आपको इमरान खान के आने से पहले जरा दौड़ाए ना, जब से इसका मार्ज वजूद में आई और इमरान खान के बुलाए हुए जो अजलास थे, उसके पीछे आपको शायद ही कोई गिनती के ऐसे इजलास मिलेंगे कि जिससे साम्राज्य या जो गैर मुसलमान, जो मुसलमान दुश्मन ताकते हैं, उनमें कपकपी तारी हुई हो। बिल्कुल भी आपको गिनती की 1-2 मिसालों के अलावा कोई नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे बेशुमार काबिले एहतराम और बेशुमार इल्म रखने वाले दोस्त बैठे हुए हैं। यहाँ पे अभी मैंने अजमत भाई की भी आवाज सुनी, बेशुमार लोग और बैठे हुए हैं। आप मेरी इस बात से यकीनन जो एग्री करेंगे, जो ईवान, जो दीवारें, जो मरहब के किले जो इमरान खान ने ओआईसी को जब सरबराही उसने की, उसने इतनी जल्दी से जो हिला के रख दिया ना, ये प्रॉब्लम ही ये था कि अगर ये बंदा इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो अगले 4 से 6 सालों में या एक और टर्म के अंदर अंदर ये अनडिफीटेबल जो यूरोपियन ब्लॉक है, ये उसको ओवरकम करके उनके सीने पे पांव रख के ये बड़ी दूर चला जाएगा। और सल्तनत उस्मानिया के बाद सल्तनत इमरानिया का जो परचम, जो सूरज बुलंद होता हुआ इन्हें दिखाई दे रहा था, वो खाली उनको नहीं था। देखें, वो यूरोपीय यूनियन का प्रॉब्लम नहीं था, वो अमेरिका या मगरबी साम्राज्य का प्रॉब्लम नहीं था। मैं आपको पहले बता रहा हूं, वो लोग जिन्होंने इस ओआईसी में आप लोगों को बतौर मुस्लिम उम्मा रुसवा किया, असल में ये उनके लिए भी बहुत बड़ा एक थ्रेट था कि इमरान खान अगर एक सल्तनत इमरानिया, और डेफिनेटली मैं इसको सल्तनत इमरानिया इसलिए कह रहा हूं कि जो उस बंदे ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं सर,
जो वर्सटाइल और डाइवर्स कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं ना, आपको अरब ममालिक में से, आपको अफ्रीकी मुसलमान मुल्कों में से, आपको किसी भी मुसलमान मुल्क का अगर कोई बाशिंदा आपके साथ मिलता जुलता, तो वो आपको वही बातें बताएगा जो पाकिस्तान की गली कूचे में लोगों को पता लगी। यानी उसने पूरी मुस्लिम उम्मा का कायद हो के बन के साबित करके दिखा दिया। और ये साम्राज्यी कुव्वतों के साथ साथ उनके जो मशरक वुस्ता के अंदर जो पालतू थे, जो खुद साख्ता मुस्लिम उम्मा के जो लीडर बनी फिरते हैं, जो असल में चौधरी और बड़े असल में तो वो बोने हैं, तो उन बोनों को भी इसके ऊपर बहुत आपने देख लिया। ओआईसी में जो कुछ हुआ उन्होंने साबित कर दिया। मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया ने देखा। अब दुनिया वो चश्मा लगा के देख रही है, वो हकाइक सामने रख के देख रही है जो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की डाइस से लेके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो वो बातें करता है, उन सबको अटैच करके देखेंगे तो आपको ये ओआईसी की मीटिंग जो है, ये आपको साइफर से ज्यादा गंदी और नंगी नजर आएगी। जी जी अल्फ़ा भाई, बहुत ज़बरदस्त अंदाज से आपने डिफ़ाइन किया इस मूवमेंट जो ओआईसी ने किया। लेकिन क्योंकि आप के काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बच्चों को आपने अनकरीब मेरा ख्याल है कुरान के लिए भी लेके जाना होगा, तो मैं आपका यहाँ पे बैठने का फ़ायदा उठाते हुए ओआईसी का जो क्वेश्चन है वो अज़मत भाई लेके चलेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे नीचे अली रज़ा अंसारी साहब मौजूद होंगे, अगर वो वोट उन्होंने लिखा है आफ्टर 30 मिनट, अगर वो सुन रहे हैं तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। उनकी आज मैंने वीडियो भी देखी है और काफ़ी दूसरे अहबाब की वीडियो भी देखी है, जिसमें ये थोड़ा सा मेंशन किया गया है। मैं कुछ सवाल इस अंदाज से करता हूँ कि क्या अगर नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में दूल्हा बना के ले आई है और वो उसको वज़ीर आज़म बना देगी, तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अपना काम करना छोड़ देना चाहिए, बैकफुट पे चला जाना चाहिए? क्योंकि अली रज़ा भाई की मैंने आज वीडियो देखी है जो इन्होंने नई डाली है, उसमें इन्होंने कहा है कि बड़े अच्छे अंदाज से बात किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के काम को बड़ा सराहा है। एंड पे कहा है कि आप इतनी मेहनत ना करो। क्या हम मेहनत करनी छोड़ दें? मुझे उनकी वीडियो से काफ़ी इख्तलाफ हुआ है, तो इसलिए मैंने ये सवाल उठाया, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद है, तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप बात करें। जी देखें, गुजारिश ये है कि पीटीआई इस वक्त इस वजह से नाकाबिल तस्खीर और नाकाबिल शिकस्त हो चुकी हुई है कि इसका पूल, ये समंदर बहुत वसी हो चुका है, ठीक है। और ये वो समंदर है कि जिसके अंदर बुलंद अजीम चट्टानें भी हैं और जिसकी गहराई भी बहुत ज्यादा है और इसकी ठाठे भी बहुत है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पीटीआई के थिंक टैंक जो इसका एक ओपन सोर्स थिंक टैंक है ना, जो जिसको कह लें आप दानिशमंदी और दानाई का जो पूल है, वो बहुत बहुत वसी है। मैं अक्सर कहा करता हूं सर कि इसमें मिडल ईस्ट की तपती धूपों के अंदर, जलते हुए रेगिस्तानों के अंदर मेहनत मजदूरी करने वाले एक आम पाकिस्तानी से लेके दुनिया के मुख्तलिफ बड़ी बड़े मुल्कों के बड़े बड़े इदारों में जो बैठे हुए साइंसदान पाकिस्तानी है ना, इन दो सतहों के दरमियान आने वाली हर किस्म, हर कैटेगरी और हर शोबा जिंदगी से जो ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तानी है ना, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है, वो इस वसी समंदर में कोई तो चट्टान बन के खड़ा है और कोई इतना गहरा है कि वो कोई साजिश या कोई दुश्मन आता तो उसको अपनी गहराई में जम करके मार देता है। ठीक है जी। इसका मकसद क्या है? ये जो इतनी मैंने मतलब तफसील के दी, इसमें ये है, देखिए, जब आपके पास इतनी डाइवर्सिटी होगी, जब आपके पास इतनी बड़ी खपत होगी, तो उस वक्त उस हिसाब से लोगों की सोच भी मुख्तलिफ होगी, नुक्ता नजर भी मुख्तलिफ होगा, राय भी मुख्तलिफ होगी और इख्तलाफ राय का लेवल भी डिफरेंट होगा। अब हमें ऐसे ठाठे मारते हुए समंदर में सही तरह से बादबानी कैसे करनी है, हमें सरवाइव कैसे करना है? हमें सरवाइव ये करना है कि कप्तान के दिए हुए जितनी भी उसने तरबियत की और उसके बाद जो हमने अपनी माँ और बाप की गोदों से जो सीखा, फिर हमें हमारे दीन ने सिखाया, फिर हमारे उस्तादों ने सिखाया, हमारे मुआशरे ने सिखाया, फिर दूसरे मुल्कों में जाके हमने सीखा, ये तमाम तब जितना भी हमने सीखा, उस सीखने को हमने यहाँ इस्तेमाल करना है कि इस ठाठे मारते हुए समंदर में कौन फैसल वावडा है, कौन चौधरी फवाद है, कौन फैसल जावेद है, कौन फयाज चौहान है। ठीक है। मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि मैं आमिर भट्ट अल्फा राइजिस के नाम से जो एक बंदा इस लश्कर का छोटा सा अबाबील है, आपने मेरा भी हर पल, हर बात, हर लफ्ज,
हर मुहावरे पे एहतसाब खुद से करना है। आप अगर मुझ पे भी यकीन करेंगे कि हम पिछले एक दहाई से इस बंदे को देख रहे हैं, ये काम कर रहा है, तो भाई मुझे भी दाएं बाएं होने में टाइम नहीं लग सकता। लिहाजा ये आप में अब इतनी ताकत होनी चाहिए कि हमारे अंदर भी बैठ के अगर कोई लोग ऐसी बात करते हैं, चाहे वो मैं ही हूं, पहले तो देखें कि अगर उनका नुक्ता नजर थोड़ा सा दाएं बाएं हो रहा है तो आपस में कंसल्ट करें, गुफ्तगू करें, क्यों कैसे क्या सवाल जवाब करें। और जब ये देखें कि नहीं ये सवाल जवाब से दूर मायूसी की हद तक है, तो फिर उसकी स्ट्रेटजी और है जिसपे हम कई दफा डिबेट कर चुके हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, प्रॉब्लम यही आ गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये वो आबशार है कि जिसके पीछे कोई एक दरिया नहीं है, कोई एक नहर नहीं है, कोई एक पहाड़ नहीं है। ये आबशार पता नहीं कहां कहां से छोटी छोटी नदियां मिलाती 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 एक इतनी अजीम आबशार बन जाती है कि जिसके पानी के गिराव का भाव कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं। ओवरसीज को अगर कोई कंट्रोल, अच्छा एक चीज और भी है, ये वही ओवरसीज हैं जो कप्तान की एक आवाज के ऊपर अपनी कुल कायनात उसके कदमों में निछावर कर देते हैं, अपनी जवानियां तक उजाड़ देते हैं, सारा कुछ। तो ये वही ओवरसीज हैं जो अगर कप्तान की किसी पॉलिसी में भी कोई थोड़ी सी दाएं बाएं होती है तो ये फौरी तौर पे खड़े होकर सवाल करते हैं। लिहाजा ओवरसीज को अपने काम से पीछे करने का अब जवाब जो है वो बहुत दूर चला गया। ये तो इम्पॉसिबल सी चीज होगी। नो वन, आप ये देखिए कि 2 ओवरसीज जो हैं वो अगर मायूस होते हैं तो 200 नई ताकत के साथ आके उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। अगर 200 चुप करते हैं तो 2000 नए आ जाते हैं। लिहाजा अब ओवरसीज वाली का जो है ना वो ये नहीं, अब ये नाकाबिले तस्खीर चीज होगी। इस पे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अभी मैं थोड़ी सी इस बात को थोड़ा सा वसी करूंगा। ये अली भाई नीचे शायद हों, अली रज़ा अब्बास अंसारी साहब, वो अपने आप को एक तो डिफाइन करते हैं कि वो मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और दूसरी तरफ वो मायूसी की बात करते हैं। क्या उनकी मायूसी की बात को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की मेहनत रायगां चली जाएगी, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ से बड़ा इख्तलाफ रखता हूँ, क्योंकि हम तो अपनी मेहनत जो है वो नहीं छोड़ेंगे और आखिरी दम तक जाएंगे। खान साहब अंदर बैठे हैं, हम लड़ेंगे इस निज़ाम के साथ। अगर हमारा कोई खुद को अपने आप को कैंडिडेट जाहिर करके सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंट करता है और फिर ये भी कहता है कि यार आपका कुछ बनने वाला नहीं, तो हम उसको किन अल्फाज में ले, या उसके मतलब हम जफर भाई, क्या सोच रहे हैं? मैंने अर्ज की ना कि हर बंदे का देखने का अपना जाविया, अपना नुक्ता नजर होता है, और फिर मैंने अपनी भी मिसाल दी कि कंप्रोमाइज होने में वक्त भी नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि भाई को मुझसे डिस्कस करें, आप देखें, पूछें जी क्या क्यों आपने ये कहा। हो सकता है कोई लॉजिकल ऐसी चीज देखें। अगेन 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 जफर भाई, ये एक आम शहरी को समझाते वक्त तो मुझे शायद 2-3 घंटे तकरीर करनी पड़े, लेकिन समझदार लोगों के लिए ये मुख्तसर समझने वाली बात ये है कि अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर आपके कोई सवालात हैं, अगर आपके अंदर कोई बेचैनी है, तो उसको बयान करने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि वो सोच की सूरत में बाहर आए, ना कि मायूसी की सूरत में। तो अब सवाल ये, इसके 2 सेक्शन हो गए ना। एक कि कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, कोई बेचैनी हो सकती है, या उसके पीछे कोई सवाल हो सकता है। ये तो दुरुस्त हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर किसी भाई या बहन के उसको मंजर-ए-आम पे लाने के तरीके में थोड़ी कमी पेशी है, तो हमें मिलके उसको सॉल्व करना होगा। और जब हम इस मरले को कोशिश करने के बाद भी जब देखते हैं कि नहीं यार ये बंदा नहीं, हमने फैसल जावेद पे बड़ी मेहनत करके देखी, बड़ा समझाया, लेकिन वो बंदा कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब ये कंफर्म हो जाए तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो आपको पता है। हम अपनी सफों में सबसे पहले सफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम दुश्मन की सफों में जाके जो डंडा फेरते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल से कि अभी अली रजा साहब उस मकाम पे होंगे, या वो उनका कोई नुक्ता नजर होगा जिसको वो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आई गेस ही नीड्स टू कम द अदर वे अराउंड। जी बहुत शुक्रिया अल्फ़ा भाई। ये सवालात इसलिए उठाने को दिल किया क्योंकि वो एक तो नीचे थे, उनको फ़ेस टू फेस उनको दावत भी दी, वो आएंगे भी। उनसे मैं चाहूँगा मेरी गैर मौजूदगी में भी ये सवाल किया जाए कि उन्होंने ये वीडियो क्यों अपलोड की, ये मायूसी वाली बात क्यों की, और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो सरेआम घूम फिर भी रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ रही। और मेरे जैसा एक पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ है, जो बाहर बैठा है, वो आज अपने भतीजे की शादी भी अटेंड नहीं कर सकता। तो इसमें भी वो थोड़ी सी उनसे ज़रूर बात कीजिएगा, आप लोगों ने उनको दावत इंशाल्लाह। भी दी है।
हाँ जी, तो उनसे ये भी सवाल कीजिएगा। तो और दूसरा कि एक ब्रॉड गौर भाई की ब्रॉड पे एक दफ़ा अल्फ़ा भाई आपको मैंने इनवाइट किया था, आप वहाँ पे भी आए थे, दिन को होती है हमारी ब्रॉड। वहाँ पे भी हमारे अली रज़ा भाई को मैं नीचे बैठ के सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पीटीआई को इस इलेक्शन का बाइकआउट कर देना चाहिए। तो वो मेरे लिए काफ़ी हालात कन्फ्यूजन का शिकार हुए। वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, मेरे साथ बैठते भी हैं। तो मैं लेकिन जो एक पॉइंट है जो मेरी सोच के साथ टकराव करता है, मैं ज़रूर उठाता हूँ, वो चाहे इमरान खान ही क्यों ना मेरे सामने बैठा। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मेरे ऐसे सवालात थे। मैं खान साहब को 2012 में इसलिए ज्वाइन किया, उससे पहले मेरे इख्तलाफात थे, उनके साथ मुलाकात हुई और मैंने डायरेक्ट उनसे भी सवालात किए। तो मेरा ख्याल है अली रज़ा भाई को भी महसूस नहीं करना चाहिए, उनको हमारे सवालात के जवाब देने चाहिए। तो ये दो सवालात हैं, मायूसी पे और ओआईसी पे, वो मेरा ख्याल है अजमत भाई लेके चलेंगे। अल्फ़ा भाई आपके साथ है, मेरे पास इशा का टाइम हो चुका है, तो मैं थोड़ा वक्फा लूंगा आप लोगों से। जी अल्फ़ा भाई, ठीक है आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जफर भाई, इसमें एक चीज और जो मुझ तक दूसरे सोर्स से बहुत सारे साथियों ने ये सवाल मुझे उठाया है, पर प्राइवेट में भी और मुख्तलिफ ब्रॉड्स के अंदर भी कहा गया है, मुझे कॉल करके भी कहा गया है कि आपके साथ जो भाई बैठते हैं अली रजा भाई, उनके मतलब हम आप उनसे जरा बात करें या हमें हमें उनसे पूछ के बताएं। मैं मतलब उनको थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात है। मैं कहा जी क्या मसला है? वो कहते हैं जी कि ये जहां बकायदा प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्टिव पार्टी की बातचीत हो रही होती है, वहां पे सिर्फ अलामती तौर पे आते हैं और फौरी तौर पे जाके पी के गेमें खेल रहे होते हैं, जबकि ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं, अगर उनका रवैया ये होगा तो हम ओवरसीज फिर गुस्से का इज़हार क्यों ना करें। तो ये बात भी मैंने उनसे उन तक पहुंचानी थी। अब इत्तफाक से चूंकि आपने पहले से ही उनका जिक्र किया, मैं शायद पर्सनल में पूछता, प्राइवेट में पूछता, लेकिन अब मेरा ख्याल है यहाँ पूछने में भी कोई इतराज नहीं होगा। अल्फ़ा भाई, ये पूछने का इसलिए मकसद है कि वो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए कैंडिडेट। तो हमें उनको पब्लिक में पूछना पड़ेगा। अगर वो उनके अंदर ये कमी पेशी हम देखेंगे, तो हमारे जो डिबेटर हैं, जो हमारे साथ जुड़े होते हैं लोग, वो फिर जान जाएंगे, फिर मुख्तलिफ ब्रोडों पे वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। तो इसलिए मैं पब्लिक में पूछना चाहता हूँ, ये चीज़ें ज़रूर इनबॉक्स पूछते। अगर ये एक दफ़ा मिस्टेक मुझे लगती, तो पीके मैच मैंने भी देखा। खैर पीके मैच उनका अपना ज़ाती एक इंटरटेनमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये है कि काम की बजाय जब हम लोग ब्रोडों पे बैठे होते हैं, तो हमारे जो पीटीआई को कहते हैं कि हम पाकिस्तान में प्रेजेंट कर रहे हैं और वो इंटरटेनमेंट कर रहे हो, और मुख्तलिफ स्टेज ड्रामों के जो एक्टर हैं उनके साथ बैठ के मैच लगा के बैठे हो, तो मुझे ये थोड़ा से सवालात मेरे ज़हन में भी है, इसीलिए मैंने सवाल एग्जैक्टली। उठाए। मेरा कोई ज़ाती अली रज़ा भाई बहुत ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, मेरे साथ बैठते भी हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, लेकिन ये सवालात एक नेचुरल सवाल है, सवालात है। मैं तल्लक को एक साइड पे रखता हूँ, पार्टी को एक साइड पे रखता हूँ। हमारा मिशन अब बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे हर एक से सवाल करना पड़ेगा। मुझे महसूस होगा अगर कहीं पे आपकी वीडियो मैं ज़रूर देखता हूँ, आप मुझे जहाँ पे महसूस हुआ मैं आपसे भी डायरेक्ट सवाल करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे अंदर जो सवाल है वो टिकता नहीं है। मेरा जो सुकून है वो तब तक नहीं आता जब तक मैं उस बंदे से वो सवालात ना पूछ लूँ जिसमें मुझे कन्फ्यूजन हो। तो मेरा ख्याल है इस पे इतराज़ नहीं होना चाहिए। आम टेलीविज़न शो में भी जो सियासतदान है उनसे सवालात पूछे जाते हैं, वो जवाबात देते हैं, अपना बताते हैं, अपनी राय देते हैं कि क्यों मैंने ये किया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि वो पब्लिक जो प्लेस है वहाँ पे आके अपने जो है वो कंसल्ट करें और बताएं कि हमें कि ये क्यों ऐसे ये मायूसी वाली बातें कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया अल्फ़ा भाई, आप इनके साथ जुड़े रहे। मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगा क्योंकि इशा का टाइम हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छे से जो है वो डिफ़ाइन भी किया। तो मैं चाहूँगा कि अज़मत भाई बाकी अब आपसे भी पूछ लें। हमारे ओसी भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, वासिफ भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, ओआईसी पे आप बात कर लें, और साथ में अगर ये मजयूसी पे बात करनी है तो मैं चाहूँगा कि आप लाजमी आज यही बात जारी रखें कि ये कुछ लोग हमें मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मायूस नहीं होना, हमें लड़ना है, आखिरी दम तक लड़ना है, जैसे खान साहब लड़ रहे हैं। हमें हथियार नहीं फेंकना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर मेरी किसी बात से किसी को इख्तलाफ हो तो वो इख्तलाफ कर सकता है, मेरे मुंह पे भी कह सकता है, मैं बिल्कुल फील नहीं करता। और अगर मेरे अल्फाजात से नीचे बैठे किसी भाई को ऊपर बैठे हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुनने का भी, और अल्फ़ा भाई ने भी बहुत हमारे इल्म में और नॉलेज में इजाफ़ा किया है। तो आप पढ़ लें नमाज इंशाल्लाह, और हमारे लिए दुआ करें या ना करें, खान साहब के लिए लाजमी करिएगा, ठीक है। तो बाकी अल्लाह पाक आपको बस हिफाजत में रखे अपने में। जी अल्फ़ा भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका भी सर जी, आपने हमें गरीबों का टाइम दिया आज।
तो बहुत ज़्यादा मालूमात मिली हैं। ये जो आपने बातें बताई हैं ना, जो आपसे मिली हैं मुझे, इनके ऊपर मैं पूरा 1 हफ़्ता अभी ना अपना कर सकता हूँ बात, ठीक है। तो जिधर भी जाएंगे इंशाल्लाह आपके इस इल्म को के तवस्सुल से हम किसी के काबू नहीं आएंगे। रही बात जो आपने बोली है, ये एक मायूसी वाली हो गई और जो दूसरा ओवरसीज़ वाली होगी, तो ओवरसीज़